Hello, everybody, and welcome to the fourth lecture of Computer Applications for Class 9th and Class 10th ICSE. Before attending to this lecture, make sure that you have watched all the 3 lectures which have been uploaded before this lecture and are present on my YouTube channel in a separate playlist. I have made a separate playlist named Computer Applications, where you will find all the lectures that I will upload for computer applications. So you will not have any difficulty in searching the lectures. Now, in this lecture, I'm going to discuss this topic, tokens in Java. Okay, so what do we mean by tokens? The word tokens means what? If you see, the definition of tokens is this. Tokens are the smallest individual units in a program. So we write a Java program, right? And in a Java program, we have different codes. Okay, suppose you have a Java program. It is composed of codes, lines of codes are there. Each and every part of the code, or you can say the smallest unit of a code, the smallest unit of a code is a token. Now, how do you understand it? To explain this, let me take an example of an English sentence. Okay, let me write a sentence in English. Ram is a good boy. Okay, so this sentence has nothing to do with Java, but why I'm using this sentence to explain you the concept of tokens, you will understand better. See, this is a simple sentence. Ram is a good boy, and there is a full stop. Now, see, if I take each and every element of this sentence, I mean each and every word or each and everything that makes this sentence, then each of the smallest element is a part, has a name. It belongs to a category. Like the word Ram. Ram is what? Ram is a proper noun. Or you can say Ram belongs to the category of nouns. Is a verb, isn't it? It's an auxiliary verb. So is a verb. A belongs to the category of articles. A and the articles hota hai, right? Good kya hai? Good belongs to the category of adjectives. Good is an adjective. And what is a boy? Boy also is a noun. It is a common noun. And what is this full stop? Full stop is also a part of the sentence. The full stop is a punctuation mark. So, each and every element of the sentence has a category or belongs to a category. Ram belongs to the category of noun. Is belongs to the category of verb. A is an article. Good is an adjective. Boy is also a noun. And this full stop is a punctuation mark. Similarly, in Java also, when we write a sentence in Java, suppose I write a code, okay? For example, int a is equal to 5 semicolon. You will learn all this, how to write a code and how do we write, what is the sentence, what is this code. I have not explained you right now, but just see as of now. This is a sentence, this is a code in a Java program. Now, each and everything inside in this code belongs to a particular category. Int belongs to a category. Now, you should be able to tell what is int. If you have watched my previous lectures, I have discussed about int, the different types of data types. If you remember, I have discussed int, float, double, and long, short, byte, and so many data types I've discussed. Okay, so you should be able to tell that, sir, int is a data type. Yes, int is a data type. Okay. Now, a is what? You may not be able to tell right now. This is equal to sign is also one of such elements which belongs to a category. 5 is also one of such elements which belongs to a category. Then this semicolon also has a special category. We will study all of those categories here, and each of them is a token. Int is a token, a is a token, this equal to sign is a token, 5 is a token, and this semicolon is a token. Now, tokens can be broadly classified into 5 types. You can see I have written there are 5 types of tokens. Now, how do we classify the tokens? Let us understand. Let us erase these examples. Now you have understood the concept of tokens, right? So let us understand the types of tokens.
So there are 5 types of tokens. Now they come in exam, not in boards, but in class 9th level exam. Define tokens. This is a very common question. You have to write tokens are the smallest unit of a Java program. Now what are the 5 types of tokens? इनका definition और इनका नाम class 9th के exam में आता है. 10th में किस तरह से आता है? I will discuss a few ICSE questions at the end of the video also. Now let us see, what do we mean by keywords? The first type of token, keywords. Even in my previous lectures, I have used the term keywords. मैंने जब तुम्हें new पढ़ाया था, new keyword, मैंने बोला था new एक keyword है, याद है? New is used to create an object in a class. ये भी मैंने previous classes में बोला था. So I told you new is a keyword. Why? Because new has a special meaning to the Java compiler. इसके अलावा मैंने एक और कीवर्ड तुम लोगों के साथ शेयर किया था previous videos में, वो था class. Whenever we create a class, we write the keyword class and then the class name. Suppose I have to create a class named triangle. So class, then space, triangle. So this is how we have created a class, and this class के अंदर में obviously codes होंगे. Those I am not writing now, but we have just declared a class by this code. So इसमें जो हमारा word है class, this is a keyword because this word has a special meaning to the Java compiler. The word new is a keyword because it has a special meaning to the Java compiler. So let us understand. I hope all of you have written by now these 5 names. इसको लिख लो. Screen को pause करने की जरूरत है. Pause करके लिख लो. So the first type of token is keyword. Now what do we mean by keywords? Keywords are reserved words. क्यों reserved words? क्योंकि इसको जावा कंपाइलर के लिए इनका एक स्पेशल मीनिंग है, तो इसे रिजर्व करके रखा हुआ है. इनको हम आइडेंटिफायर नाम के लिए यूज नहीं कर सकते. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इन्हें हम आइडेंटिफायर नेम्स के लिए यूज नहीं कर सकते. अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा. सो यू सी, keywords are reserved words which have a special meaning to the Java compiler. Java compiler के लिए इनका special meaning है and they cannot be used as identifier names. This I will explain in 1 or 2 minutes later. थोड़ी देर बाद मैं इसको समझाता हूँ. जब मैं identifiers में आऊंगा ना, second वाला हमारा identifiers है, तब तुम्हें clear हो जाएगा कि identifier names का क्या मतलब है and why we cannot use keywords and how we cannot use keywords as identifier names. Okay, but as of now you write down that keywords cannot be used as identifier names. Now examples of keywords write down. जैसे एक तो मैंने बोल दिया new, दूसरा class. इसके अलावा भी बहुत सारे keywords है like if, else, switch. Then all the data types, int, float, जितने भी data types है, इनको ये सारे words का special meaning है compiler के लिए. इनको हम change नहीं कर सकते अपने मर्जी से. Okay, short, जितने भी boolean, char, जितने भी सारे डेटा टाइप्स हैं या जितने भी सारे हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स, वो सारे कीवर्ड्स में आते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर कीवर्ड्स. ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था. क्या यहाँ पर लिखा था ना, int a is equal to 5 सेमीकोलन. याद है तुम लोग? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. तो इसमें मैंने बोला था int belongs to the category of data types. और अगर मैं उसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में देखूं तो int क्या है? मैंने अभी बोला int डेटा टाइप है और सारे डेटा टाइप्स कीवर्ड्स होते हैं. दैट मींस हमें पता चल गया इस int का कौन सा, int belongs to which token. इन 5 टोकन्स में से ही किसी में ये बिलोंग करेगा. तो int कीवर्ड है, कीवर्ड. ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पर, सॉरी नेक्स्ट टोकन पर. वो है आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या है? अब देखो इधर, बहुत सिंपल है. आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, क्लासेस, एरेज, फंक्शंस एटसेट्रा. अब देखो, हमें फंक्शंस और एरेज तो वी विल स्टडी लेटर इन क्लास 10th और 10th. मैं तो 9th और 10th का कोर्स को एक साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर कोर्स में डिजाइन कर रहा हूं. तो इसी लेक्चर कोर्स के दौरान ही हम लोग आगे पढ़ेंगे एरेज और फंक्शंस क्या होते हैं. तो वी विल स्टडी देम लेटर, डोंट वरी. तो वी विल नाउ फोकस ऑन वेरिएबल्स एंड क्लास नेम्स. इन पर ध्यान से देखो. तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं. यूजर डिफाइंड नेम्स मतलब प्रोग्रामर अपने मर्जी से डिफाइन करता है.
प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिफाइन करता है। जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया ना, क्लास डिक्लेयर करो, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। इफ आई टेल यू डिक्लेयर अ क्लास नेम्ड अमित, तो तुम लोग क्या लिखोगे? क्लास स्पेस अमित। तो इससे क्या हो गया? आई हैव डिक्लेयर्ड अ क्लास एंड द नेम ऑफ द क्लास इज अमित। तो ये जो अमित है, ये वर्ड तो कोई कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये मैं कुछ भी वर्ड यहाँ यूज कर सकता हूँ। मैं अमित, रवि, श्याम, सुंदर कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इज नॉट अ कीवर्ड, बट दिस इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। और ये किसका नाम है? ये क्लास का नाम है। जो क्लास मैंने अभी अभी डिक्लेयर किया उस क्लास का नाम है। तो ये जो अमित नेम हो गया, दिस इज अ नेम ऑफ अ क्लास, और वो भी यूजर डिफाइंड। तो देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, यूजर डिफाइंड नेम ऑफ अ क्लास can be an identifier. That means this Amit belongs to the category of which token? Amit is a token. Which type of token? Amit, the word Amit is identifier. Identifier. Similarly, वापस आते हैं इस एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, int a is equal to 5, यहां पर ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल में मैंने 5 को स्टोर किया। 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैंने स्टोर किया एक वेरिएबल में a। तो a नाम का एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में मैं 5 वैल्यू को, 5 नाम का 5 कांस्टेंट को स्टोर कर रहा हूं। तो ये जो a है, दिस इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। दिस इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। और ये वेरिएबल नेम भी मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूं। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, int b इज इक्वल टू 5, int c इज इक्वल टू 5, या फिर कोई वर्ड भी लिख सकता हूं, int नंबर इज इक्वल टू 5। ये जो मैंने लिखा a b c number, these are the names of the variables in which I am storing a value. The value is 5. It can be a constant, it has to be a constant value. तो ये जो वेरिएबल्स हम कर रहे हैं, these are the names of variables, and these names of variables can be user defined. तो ये जो वेरिएबल के नेम्स हो गए, क्लास के नेम हो गए, ये सभी कैटेगरी में आते हैं, आइडेंटिफायर्स के कैटेगरी में आते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, क्लासेस। और एरेज क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। तो एरेज के भी नाम यूजर अपने मर्जी से डिसाइड कर सकता है, और वो भी आइडेंटिफायर्स नेम होता है। फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर अपने मर्जी से डिफाइन कर सकता है, जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। उनके नाम यूजर अपने से रख सकता है, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। सो दोज फंक्शंस के नाम भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, लेटर वी विल डिस्कस एरेज एंड फंक्शंस इन डिटेल। नाउ आइडेंटिफायर नाम लिखने का कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है। ये जो मैंने लिखा अमित, ये जो मैंने लिखा यहाँ पर ए बी सी नंबर, इनको भी लिखने का कुछ रूल्स है। मैं कुछ भी नाम नहीं क्रिएट कर सकता। क्या नाम क्रिएट कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं? लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स नाउ। फर्स्ट रूल सेज आइडेंटिफायर नेम्स कैन हैव एनी अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल। आप आइडेंटिफायर में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने अमित, अमित एक आइडेंटिफायर नेम है, इसमें ए कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और ये मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे कैपिटल करना है, सारे स्मॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी कैपिटल कर सकते हैं, बीच में भी कहीं कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन इवन राइट अमित लाइक दिस, AMIT, एक नो एम को मैंने बस कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल। ये भी एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। जावा कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। So they can have any alphabet, capital or small. Digits भी हो सकते हैं, numbers भी हो सकते हैं। I can write Amit 5. This can be a class name, this can be a variable name also. Underscore हो सकता है। Underscore is not hyphen. Underscore is, this is there in a keyword. You should know zero keyword जो की होता है ना, जीरो, जीरो के बाद वाला जो की है, उसमें देखोगे एक हाइफन है और अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर is written like if I write ice cream, तो ice underscore cream, अंडरस्कोर अलाउड है। दैट मींस दिस कैन बी यूज्ड एज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम। ये एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर नेम है। और मैं क्या यूज कर सकता हूं? डॉलर साइन, डॉलर साइन को यूज कर सकता हूं। आई कैन राइट आइस डॉलर क्रीम, और यहाँ पे अल्फा नंबर्स भी दे सकता हूँ। यहाँ मुझे 5 अगर लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि नंबर्स भी अलाउड है, कैपिटल लेटर्स भी अलाउड है, डॉलर साइन अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, और एक साथ हम डॉलर अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नो स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन इज अलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ये जो डॉलर साइन और अंडरस्कोर,
यही दोनों स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं आइडेंटिफायर नेम्स में। आई कैन नॉट यूज एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। मुझे मन किया मैं हैश यूज कर दिया, अमित हैश। ये क्लास नेम नहीं हो सकता, ये वेरिएबल नेम भी नहीं हो सकता। जावा कंपाइलर सिंटैक्स एरर शो कर देगा। दिस विल गिव सिंटैक्स एरर। एरर्स इन जावा मैंने लेक्चर 3 में डिस्कस किया है, प्रीवियस टू दिस लेक्चर। वॉच व्हाट डू आई मीन बाय सिंटैक्स एरर्स, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दिया अदर देन डॉलर एंड अंडरस्कोर, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आगे कराऊंगा कि तुम्हें बताना है कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है कौन सा नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद है इट कैन बिगिन विथ अल्फाबेट्स अंडरस्कोर डॉलर साइन बट कैनॉट बिगिन विथ डिजिट्स। देखो वेरिएबल नेम्स या क्लास नेम्स यानी आइडेंटिफायर नेम्स में हम डिजिट्स तो लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैंने यहां बोला भी हम डिजिट्स लगा सकते हैं, लेकिन डिजिट से बिगिन नहीं कर सकता। इट शुड बिगिन विथ एन अल्फाबेट और डॉलर साइन और अंडरस्कोर। जैसे मैं लिखता हूं रवि डॉलर, ये अलाउड है। अगर मैं लिखता हूं डॉलर रवि, ये भी अलाउड है। अगर मैं लिखता हूं अंडरस्कोर रवि, ये भी अलाउड है। अगर मैं लिखता हूं अंडरस्कोर रवि 5, ये भी अलाउड है। अगर मैं लिखता हूं 5 रवि अंडरस्कोर, ये अलाउड नहीं है। दिस इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। इसको बोलूंगा इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब जावा कंपाइलर विल गिव सिंटैक्स एरर इफ आई यूज सच अ काइंड ऑफ आइडेंटिफायर इन माय प्रोग्राम। इस तरह का क्लास नेम हम क्रिएट नहीं कर सकते, इस तरह का क्लास नेम हम या वेरिएबल नेम भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, इस तरह का एरे नेम भी हम नहीं रख सकते, फंक्शन नेम भी नहीं रख सकते। सो ऑल दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर नेम्स। ठीक है, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। हाँ, डिजिट बाद में हो सकता है, कहीं बीच में मिडिल में भी हो सकता है। आई कैन राइट अंडरस्कोर रवि 5 सुरेश, हाँ ये चलेगा विदाउट एनी स्पेस। स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा भी है, इट कैन नॉट हैव अ स्पेस। स्पेस नहीं हो सकता, स्पेस इज नॉट अलाउड। एनीवे, नाउ थर्ड पॉइंट में आते हैं। इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड नहीं हो सकता। देखो कीवर्ड तो बहुत सारे हैं, इसमें से मैंने न्यू क्लास इतने सारे कीवर्ड्स दिखा है, इनमें से कोई भी कीवर्ड यू कैन नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर नेम। ओके, जैसे मेरी मर्जी, मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास, और क्लास का नाम रख दिया न्यू, तुरंत एरर। कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के टाइम एरर दिखा देगा, सिंटैक्स एरर। यू कैन नॉट क्रिएट अ क्लास विद द क्लास नेम with a word which is an identifier. That means, which is a keyword. That means identifiers cannot be keywords. These keywords are reserved words and cannot be used as identifier names. हाँ, लेकिन अगर तुम क्लास न्यू लिखते हो कैपिटल N, तो फिर ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कैपिटल NEW इज नॉट अ कीवर्ड। जावा इज केस सेंसिटिव। वो कैपिटल NEW और स्मॉल NEW को अलग अलग देखता है, अलग अलग है। Small NEW is a keyword. This cannot be used as an identifier name, but capital NEW can be used as an identifier name. But we should avoid such very closely related words which are very close to keywords. Use नहीं करना चाहिए, हालांकि करेंगे तो कोई एरर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो now I hope you all have understood the meaning of this line. Which line? This one, which I told no, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। cannot be used as identifier names, जो keywords में मैंने लिखा था, cannot be used as identifier names, मतलब हम keywords को identifier names की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और ये रिजर्व्ड है इसीलिए। ठीक है, so this is important. Now the next point is can be of any length. ये जो आइडेंटिफायर नेम्स है ये किसी भी लेंथ का हो सकता है। बड़ा सा मैंने लिख दिया, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, बहुत इम्प्रैक्टिकल। तुम अगर क्लास एग्जाम में मान लो कि तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है और तुम लिख रहे हो, प्रोग्राम को स्टार्ट किए हो, क्लास का नाम लिखे हो, एकदम बड़ा सा कोई वर्ड, बहुत ही बड़ा सा वर्ड, जिसमें you have used 26 alphabets of your English and then all numbers also and then dollar sign underscore and everything, and you have made a very big class. The program will not give any syntax error, it will still execute. But this is very impractical, this is very impractical and we should not do that. So we should better avoid using very long identifier names. Okay, maybe your teacher will deduct your marks for writing such a big
class name also. Okay, because the teacher may get irritated by seeing such a big name, so avoid doing that. But Java allows you to write identify names of any length. Java को compiler को कोई problem नहीं है, teacher को problem हो सकता है, इसलिए avoid करना. Now class name छोटा रखना, you know, have a meaningful name. अगर हम program कर रहे हैं जिसमें you know rectangle का area, square का area निकालना है, तो उस class का नाम रखो area. उस क्लास का नाम थोड़ी कुछ तुम दूसरा वर्ड एप्पल या ब्रिंजल रख दोगे. उस क्लास का नाम रखना चाहिए रिलेटेड टू द प्रोग्राम. दैट इज प्रेफरेबल. We will discuss all these things, how to, you know, write the names of a class when we will discuss programming thing. Okay, now the last point already I have discussed, that variable names or class names, array names, function names, I mean identifier names, cannot have a space. Okay, so now we will discuss a question based on this. We will discuss a question based on this identifier names. या चलो इसको करते हैं, प्रोग्रेस चेक कितना हमने पढ़ाई किया. Which of the following are valid identifiers? Means which of the following can be valid variable names या फिर class names, valid identifiers. For कर सकते हैं? No, ये invalid है, ये invalid है. तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, हाउ विल आई राइट? तो लिखेंगे नंबर 1 आंसर, नंबर 1 फॉर, लिखेंगे इनवैलिड. रीजन, देखो रीजन दे हैव नॉट आस्क्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क फॉर द रीजन आल्सो. क्यों इनवैलिड है? रीजन लिखेंगे आइडेंटिफायर नेम्स कैनॉट बी अ कीवर्ड, cannot be a keyword. Okay, तुम्हें अगर अभी नहीं पता तो पता चल जाएगा आगे आगे कि for एक कीवर्ड होता है जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे. For क्या है? एक कीवर्ड है. Okay, in the example of keywords, you know, you write this for also. For को भी ऐड कर दो, बहुत कॉमन है. फिर कुछ और ऐड कर दो, do ऐड कर दो, while ऐड कर दो. ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करने वाले हैं, तो इनको हम नहीं यूज कर सकते एज आइडेंटिफायर नेम्स. सेकेंड क्वेश्चन, रिटर्न. Now let me tell you, return एक कीवर्ड है, लेकिन जब सारे लेटर स्मॉल है तभी वो कीवर्ड है. In the example of keywords, add this example also, return. Now return is a keyword. इसका क्या काम है ये तो आगे पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर में. रिटर्न एक कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न लिखा हुआ है ये रिटर्न कैपिटल लेटर्स में है, तो कीवर्ड वाला रिटर्न और ये वाला रिटर्न बिल्कुल अलग अलग है जावा कंपाइलर के लिए. सो दिस इज वैलिड. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना. तुम्हें रिटर्न दिखेगा, तुम सोचोगे अरे ये तो कीवर्ड है, लेकिन ये कैपिटलाइज्ड है सारे लेटर्स, और वहां पे सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए कीवर्ड में. सो दिस रिटर्न इज नॉट कीवर्ड. सो दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम, एंड इसलिए वैलिड है, इसका कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं. इनवैलिड होता तो हम रीजन लिखते हैं. नंबर 3, माई स्पेस दिया हुआ है जावा, स्पेस तो अलाउड नहीं है माई जावा के बीच में, तो ये हो जाएगा इनवैलिड. और इसका रीजन देखो, इन आइडेंटिफायर नेम्स cannot have spaces. Space allowed नहीं है. नंबर 4, $5 बिल्कुल अलाउड है. डॉलर इज अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड. इसके अलावा अंडरस्कोर इज अलाउड, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं. 5 बिल्कुल अलाउड है क्योंकि ये स्टार्ट 5 से नहीं हो रहा है, एंड या बीच में कहीं हो सकता है डिजिट्स, और ए बी तो अल्फाबेट्स है, बिल्कुल अलाउड है. सो दिस इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम. आई होप you are understanding the concept of identifiers and valid identifiers and invalid identifiers also. इसका मतलब जितने भी यहाँ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको एज अ वेरिएबल नेम वी कैन यूज, एज अ क्लास नेम आल्सो वी कैन यूज. यू नो, आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल int return is equal to 5 सेमीकोलन. ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये जो रिटर्न है, रिटर्न क्या है? एक वेरिएबल नेम है जिसमें मैं इस 5 को स्टोर कर रहा हूं. या फिर मैं क्लास क्रिएट कर सकता हूं, क्लास रिटर्न.
अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं क्लास फॉर नहीं कर सकता क्योंकि फॉर इनवैलिड है। मैं इंट फॉर इज इक्वल टू 5 या 6 कुछ भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि फॉर कीवर्ड है। आई कैनॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम और अ क्लास नेम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। हमारा कीवर्ड हो गया, अब आते हैं आइडेंटिफायर्स में। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वही मैं कर रहा हूं। अब टाइप आइडेंटिफायर्स हमारा हो गया, राइट। अब हम आते हैं लिटरल्स में। लिटरल्स में हमारा कीवर्ड्स हो गया, हमने आइडेंटिफायर्स भी कर दिया, अब लिटरल्स में आते हैं। Now, what do we mean by literals? See, literals are the constant values that are stored in the variables. Literals क्या है? These are the constant values that are stored in the variables. You know, अब देखो एक example लेते हैं। I have written int a is equal to 5. तो int तो keyword हो गया, a हमारा ये identifier हो गया। ये जो 5 है ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम इस आइडेंटिफायर में स्टोर कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलेंगे लिटरल। 5 इज अ लिटरल। चलो एक मैं कैर डेटा टाइप का भी दिखाता हूं। कैर बोलो या कुछ लोग इसे चार बोलते हैं, कुछ लोग कार बोलते हैं। ऑल आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। ओके, सो हियर आई हैव टेकन अ चार डेटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम है सपोज सी, और उसमें मैं एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा हूं। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, सुनो, ये मैंने पहले नहीं बोला था जब मैंने लिटरल्स डिस्कस भी किया था ना, डेटा टाइप्स। उसमें मैंने इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन ये डिस्कस किया था। लेकिन अब वहां पे मैंने एक चीज नहीं बोला था, आई विल टेल यू नाउ। कैरेक्टर्स को जब भी स्टोर करते हैं उसे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर करता है, इसको याद रखना हमेशा। स्टोर्ड इन सिंगल या फिर एनक्लोज्ड इन, बेटर यू राइट दिस, एनक्लोज्ड इन वर्ड इज बेटर। एनक्लोज्ड इन, इरेज हो जा रहा है एनीवे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन में, भूतिया इफेक्ट। मैं स्टोर्ड को इरेज कर रहा हूं तो कैरेक्टर्स इरेज हो जा रहा है। एनीवे चलो यहाँ पे अब इरेज ठीक हो गया। सो एनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। मतलब कोई भी सिंगल कैरेक्टर अगर लेंगे जो कैर डेटा टाइप का है उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे, जैसे ए। अब ध्यान से देखो, a is the value, the constant value which I am storing in a variable c. Understand this, understand this. A is the constant value, the constant value। इसीलिए इस कांस्टेंट वैल्यू जो एक कैरेक्टर टाइप है, इसीलिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज किया। देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और ये कांस्टेंट वैल्यू को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज किया है क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर्स को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करते हैं। और ये जो a है ये क्या हो गया, लिटरल, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज को हम लिटरल बोलते हैं। और उसको हमने स्टोर किया एक वेरिएबल में। तो ये जो c है, ये c क्या है, ये एक वेरिएबल है। एंड यू नो वेरिएबल नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। तो c इज एन आइडेंटिफायर। the the value a, capital A is a literal which is enclosed in single inverted commas, and this char is the data type which in this case belongs to the category of keywords. Okay, so this is how we write character constants. तो integers क्या होते हैं हमें पता है, सिंगल नंबर्स मैंने पहले डिस्कस किया, फ्लोटिंग पॉइंट का भी डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में किया हुआ है, डेसिमल वैल्यूज जैसे डबल और फ्लोट टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ हो सकते हैं। कैरेक्टर्स हो गए सिंगल कैरेक्टर्स जिन्हें हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करके। स्ट्रिंग क्या है इस पर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, कोई जो वर्ड हो या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एक सेंटेंस हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज तुम्हें जाननी है, स्ट्रिंग को हम एनक्लोज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में, एनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। जैसे मान लो एक वर्ड है एप्पल, तो एप्पल अगर एक स्ट्रिंग है, इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर एनक्लोज करके रखूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, देन ओनली इट इज अ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर मैं ए लिखा और ए को डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्टोर कर दिया, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, कैर है या स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग हो जाएगा माय डियर, स्ट्रिंग हो जाएगा। समझो, अगर सिंगल कैरेक्टर भी हुआ और उसे मैंने सिंगल कोट्स में नहीं रखकर डबल कोट्स में रख दिया,
डबल इन्वर्टेड कोट्स में रख दिया या इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। सिंगल में रखा तभी वो कैरेक्टर है। और एक वर्ड को मैं कभी भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रख सकता, क्योंकि कैरेक्टर, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड है उसे हम डबल में भी रख सकते हैं और एक सिंगल कैरेक्टर को हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी रख सकते हैं। ए कैन बी स्टोर्ड एज अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं रखा तो ये इसका टाइप हो जाएगा कैरेक्टर टाइप, कैर डेटा टाइप। कैरेक्टर लिटरल है ये, कैरेक्टर लिटरल। अगर मैं इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर दिया तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अगर मैं सिर्फ 5 लिखा तो तुम्हें पता है 5 इज इंटीजर, तो ये इंटीजर लिटरल है। अगर मैं लिखता हूं 5.6, ये डेसिमल नंबर है, तो ये कौन सा लिटरल है? कौन सा लिटरल है? यहाँ टाइप्स ऑफ लिटरल्स में से बताओ, डेसिमल है। फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल वैल्यू हो गया इसका फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अगर मैं 5 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज कर दिया, क्योंकि 5 भी एक सिंगल कैरेक्टर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज कर दिया तो भाई ये कैर हो जाएगा, कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर लिटरल। नाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। 5 इंटीजर ही है, लेकिन जब भी मैं उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो वो कैरेक्टर में मुझे स्टोर करना पड़ेगा, और अगर मैं इस 5 को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा। इन सभी चीजों का ध्यान देना, ठीक है। नाउ द लास्ट लिटरल इज बुलियन। ना बुलियन भी कैसा डेटा होता है ये भी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। बुलियन जो डेटा टाइप होता है इसका 2 ही वैल्यूज होते हैं, वो होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। और इसे मैं सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं स्टोर करता हूं, ये सिंपल ट्रू लिखता हूं या फिर सिंपल फॉल्स लिखता हूं। इसका जो यूटिलिटी है ये प्रोग्राम्स करूंगा या जब क्वेश्चंस करूंगा बुलियन पर तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। So basically we have literals of these types: integer type, floating point type, character type, string type, boolean type. इस पर बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, now that we are going to discuss. Let us check our progress. ICSE question. Yeah, ICSE 2015 का क्वेश्चन है, identify the literals as given below. कितना इजी क्वेश्चन है देखो। चलो सबसे पहला वैल्यू दिया हुआ है 0.5। You all tell me which type of literal it is. हमने तो इतना सारा टाइप्स ऑफ लिटरल्स पढ़ा, क्या ये इंटीजर लिटरल है, क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है या बुलियन लिटरल है? तो 0.5 फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, इट इज डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। Then comes A with a single inverted comma. So this is definitely character literal. Number 3, false. अब देखो ये false में डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, सिर्फ false है, तो दिस इज अ बुलियन लिटरल। अच्छा, वहीं अगर ऐसा मैं लिखता false तो false और डबल इन्वर्टेड कॉमास लिख देता तो फिर ये बुलियन नहीं है, तो फिर ये स्ट्रिंग लिटरल है। ऐसा अगर आता बोर्ड में डबल इन्वर्टेड कॉमास में false तो फिर ये स्ट्रिंग लिटरल, सिर्फ false तो बुलियन है, या सिर्फ ट्रू तो बुलियन है, ऐसा ट्रू लिखा हुआ है तो बुलियन लिटरल है, और अगर ट्रू है डबल इन्वर्टेड कॉमास है तो फिर ये स्ट्रिंग लिटरल है। नंबर 4 है हमारा ए डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो आई हैव टोल्ड यू एनीथिंग enclosed in double inverted commas is a string literal. अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होता तो कैरेक्टर, जैसा कि नंबर 2 में है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ कमिंग बैक to the next type of token, which is operators. Now see, operators पर डिस्कशन हम आज इस लेक्चर पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स का डिस्कशन में एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, लेक्चर 5, इसके बाद में आऊंगा। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल, सो आई एम कीपिंग दैट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ द 5th टोकन आई एम कमिंग डायरेक्टली, व्हिच इज पंक्चुएटर्स। ओके, ऑपरेटर्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। अब पंक्चुएटर्स में आते हैं। पंक्चुएटर्स क्या है? बहुत सिंपल है। These are special symbols which are used to separate statements or mark blocks in Java. ये blocks का क्या मतलब है? जब मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा
कुछ दिनों के बाद तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको पॉज में रखते हैं, ब्लॉक्स, इसको बस समझते हैं। सेपरेट स्टेटमेंट्स, स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू सेपरेट स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5 और एक मैं सेमीकोलन दे रहा था हर सेंटेंस के बाद जावा में। जब भी हम कुछ स्टेटमेंट्स छोड़ के सम ऑल स्टेटमेंट्स डू नॉट हैव अ सेमीकोलन। जैसे मैं अगर क्लास का नाम लिख रहा हूं, क्लास रेक्टेंगल, मैंने क्लास क्रिएट किया जिस क्लास का नाम रेक्टेंगल है, यहां सेमीकोलन नहीं होगा। तो you should know that which statements have a semicolon and which statements do not terminate with a semicolon. So you should know it. So जहां पे semicolon होना चाहिए वहां पे semicolon हमें देना ही है, and this semicolon is used to separate statements. तो ये semicolon यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल्स दिया, उसमें से ये एग्जांपल है, semicolon is one. Now here this dot is a punctuator, then this square braces are punctuators, curly braces are punctuators, राउंड ब्रेसेस आर पंक्चुएटर्स। राउंड ब्रेसेस तो हमने यूज भी किया है जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। इफ यू रिमेंबर, न्यू कीवर्ड्स अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, सपोज क्लास का नाम रेक्टेंगल है और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मे बी ओबी नाम का ऑब्जेक्ट, तुम कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, पहले क्लास नेम लिखूंगा रेक्टेंगल, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखूंगा ओबी इज इक्वल टू न्यू, फिर से मैं लिखता हूं क्लास नेम रेक्टेंगल और फिर ये राउंड ब्रेस ओपन क्लोज एंड अ सेमीकोलन। इफ यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ। सो यहां पर ये जो सिंबल हमने यूज किया, ये पंक्चुएटर है, ये भी पंक्चुएटर है, सेमीकोलन, राउंड, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसका यूज कब करते हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, क्लास रेक्टेंगल, मान लो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ क्लास रेक्टेंगल, और फिर हम कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं और उसके अंदर हम अपना कोडिंग लिखते हैं, एंड देन वी क्लोज द क्लास विद अ कर्ली ब्रेस। अब देखो, ये जो कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ और कर्ली ब्रेस एंड हुआ, ये पूरा कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी है इसे हम कहेंगे ब्लॉक। कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेस एंड हुआ, इसके अंदर जो भी लिखा हमने उसे कहेंगे ब्लॉक। तो ये क्लास का ब्लॉक है। अब समझ में आया मार्क ब्लॉक्स इन जावा का क्या मतलब है। तो एक एक ब्लॉक को अगर हम मार्क करते हैं तो वो कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, तो ये कर्ली ब्रेसेस भी हमारे पंक्चुएटर्स हो गए। इसके अलावा ये डॉट का क्या रोल है ये हम लोग करेंगे बाद में। एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स इज यूज्ड इन एरेज, एरे चैप्टर में जब हम एरे क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का वहां यूज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पंक्चुएटर। इसे हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं। सो पंक्चुएटर्स आर ऑल्सो नोन एज सेपरेटर्स। So now we will move to some questions. This question we have discussed. Now here we have the next question. Write statements to create 3 objects. हमें 3 objects बनाने हैं, named S1, S2, S3. 3 object है, S1, S2, S3. अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ बोल देता हूँ before I move to this question, my dear. ये जो मैंने लिखा है ना, identifier names, these are user defined names of variables, classes, objects के name भी हो सकते हैं, objects. Add this. ऑब्जेक्ट का नाम भी तो यूजर अपने मर्जी से क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने यहां क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगल क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम ओबी है, ये नाम मैंने अपने से दिया, प्रोग्रामर अपने से दे सकता है, और ये भी एक आइडेंटिफायर है, ये भी एक आइडेंटिफायर नेम है। ये रेक्टेंगल नाम भी आइडेंटिफायर है क्योंकि ये नाम भी एक क्लास का नाम है, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट का नाम भी आइडेंटिफायर हो सकता है, इज एन आइडेंटिफायर नेम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स के नाम है S1, S2, S3 और क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है, यू नो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, सो क्लास नेम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, देख लो एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखना है, एस कैपिटल है बाकी सारा स्मॉल है, तो मैंने भी वैसे ही लिखा है। इसके बाद स्पेस देकर हम क्लास ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, S1 इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम लिखते हैं स्टूडेंट, फिर राउंड ब्रेस ओपन क्लोज सेमीकोलन। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया S1। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, सेम क्लास है, तो स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट भी बन गया। तीसरा स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तीसरा ऑब्जेक्ट भी उस क्लास का बन गया। सिंपल, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next, we have this question. Write the difference between a Boolean literal and a character literal. So, okay. So, और ये question ICSE 2011 में आया हुआ question है। Boolean literal और character literal का difference, तुम्हें पता है Boolean literal सिर्फ 2 ही types के होते हैं, एक है true और एक है false. So, लिखेंगे
The Boolean literal can be either true or false. यहाँ पे inverted commas मत देना, डबल भी नहीं, सिंगल भी नहीं, अदरवाइज डबल दे दोगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा, गलत हो जाएगा. सो बुलियन लिटरल कैन बी आइदर ट्रू एंड फॉल्स. और ये जो कैरेक्टर लिटरल है, द कैरेक्टर लिटरल कैन बी any single character enclosed in single inverted commas. Example, A या B या फिर कुछ भी character हो सकता है, you know, it can be any special symbol like dollar sign also, but enclosed in single inverted commas, etc. So this is a question of ICSE. So you know how easy it is. We have discussed this question, and thus we have come to the end of our lecture. So thank you all of you, and God bless you, my dear students. Those who have not yet subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon. And after pressing it, switch on all the notifications so that whenever I upload a video, a notification comes on your phone. God bless you. Take care.